بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر خالد سعید اختر اپنی کلینکل سائیکالوجسٹ کے ساتھ جیلم پولی کلینک سے بول رہا ہوں. آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنے والا ہوں وہ دنیا میں سب سے زیادہ تباہی پھیلانے والی بیماری کہہ لیں، عادت کہہ لیں، نشہ کہہ لیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقی جتنے بھی نشے ہیں جو کہ دیکھنے میں زیادہ خطرناک لگتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ ان سب سے زیادہ خطرناک ہے. اس کو میرا خیال ہے اس لیے خطرناک کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ تعداد میں استعمال ہوتا ہے. اب تو یہ بچوں نے بھی، چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی شروع کر دی ہے. یعنی کہ آج ہم بات کرنے لگے ہیں سگریٹ سموکنگ کی. سگریٹ سموکنگ کب سے شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، کس کس شکل میں شروع ہوئی؟ کسی نے کہا جی کہ یہ حقہ پی لو تو اس میں کم نقصان ہے، کسی نے کہا کہ چبا کے کھا لو تو اس میں کم نقصان ہے، کسی نے کہا کہ کتھا بنا کے کھا لو، تو کسی نے مختلف طریقوں سے. لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، تمباکو کا نقصان تمباکو ہی ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں آپ لیں گے. اور اگر ہر سگریٹ پینے والے کو، یہ میرا جملہ غور سے سنیے گا، اور ہر سموکر کو یہ ویڈیو دیکھنی چاہیے. اگر آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور کسی آپ کے دوست نے نہیں دیکھی ہے اور جو سموکر ہے، پلیز فار ہز ہیلتھ، اس کے خاندان کی ہیلتھ کے لیے یہ آپ نے ضرور کرنا ہے. اب اگر ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت تقریباً 70-80 لاکھ سے زیادہ جو اموات ہیں اس میں سگریٹ کا کسی نہ کسی طریقے سے عمل دخل ہے. سب سے زیادہ دل کی بیماریاں، پھر روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ، پھر کینسرز، اور جتنے بھی کینسرز ہیں ان میں کم از کم 40-50% جو ہے وہ سموکنگ سے ریلیٹڈ کینسر ہے. وہ چاہے سب سے کامن جو کینسر ہے وہ پھیپھڑوں کا ہے، اور پھیپھڑوں کا کینسر جو ہے وہ 90%، 100 میں 90% جو ہے وہ سگریٹ کی وجہ سے ہے. اور جب کسی کی ڈیتھ کے بعد ہم کرتے ہیں کہ ہم پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، ڈاپسی کرتے ہیں، تو جب کرونک پرانے پینے والے سگریٹ لوگوں کا پوسٹ مارٹم پہ دیکھا گیا تو ان کے پھیپھڑوں کی بجائے راکھ تھی، صرف راکھ. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ سگریٹ مزہ لیں گے، آپ سوٹا لگا رہے ہوتے ہیں اور آپ ہر سوٹے کے ساتھ ایک اس میں راکھ کا اضافہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں اگر جو منہ سے چباتے ہیں، منہ سے کھاتے ہیں، جتنے بھی منہ کے کینسرز ہیں، جتنے بھی یہ گلے کے کینسر ہیں، یہ سارے کے سارے ان کی وجوہات پرانے السرز ہیں، برے حالات ہیں، یہ سارے کے سارے سگریٹ کی وجہ سے. اب آپ آتے ہیں ذرا دوسری سائڈ پہ کہ سگریٹ میں سے کیا ہے. یہ اٹ ورکس کوئکلی، دا موسٹ کوئکلی، سب سے زیادہ جلدی کام کرنے والا جو نشہ ہے وہ سموکنگ ہے. جب آپ اس کا کش لیتے ہیں within 7 to 10 seconds اس کے اثرات دماغ میں پہنچ جاتے ہیں. اور جب دماغ میں پہنچتے ہیں تو جو نکوٹین ہے، نکوٹین وہاں سے کیمیکل ریلیز کرتی ہے جن کو آپ پلیئر کیمیکل کہتے ہیں، سیروٹونین، جیسے کہ 4 ڈوپامین ہے، ڈوپامین مین ہے اس میں. تو ڈوپامین برین سے نکلتی ہے، لیکن باقی باڈی سے ہماری کچھ نکلتے ہیں جن کو آپ ایپیڈیفرین کہتے ہیں یا ایڈرینلین کہتے ہیں. یہ دل کی دھڑکنوں کو تیز کرتی ہے اور باقی چیزوں کو کرتی ہے. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ واحد نشہ ہے کہ جو آپ ایک دم سے آپ کو اس کا اثر شروع ہوتا ہے. اور
इतनी ही जल्दी उसका असर खत्म भी हो जाता है, इसलिए फिर आप अगले सिगरेट की तरफ चलते हैं। इसके अलावा अब इसमें जो केमिकल्स हैं उनकी वजह से एक आपको मैं बता दूं कि एक जो सिगरेट का टोबैको है उसमें 4000 से ज्यादा केमिकल्स हैं। 4000 से ज्यादा मुख्तलिफ नुकसानदेह केमिकल्स हैं और उन 4000 में से कम से कम 40% ऐसे हैं कि जो कैंसर की वजह बनते हैं और जिनमें कैंसर पैदा करने की सलाहियत है। अब लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक जो आपकी किडनी का या प्रोस्टेट का बसाने का कैंसर है उसकी वजह भी उन्होंने सिगरेट को कहा है। तो ये ना सिर्फ आपके फेफड़ों को बल्कि आपके बाकी हिस्सों को भी नुकसान पहुंचाता है। अब हम आते हैं खून की नालियों की तरफ। इसके अंदर चूंकि कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है और ऐसे केमिकल पैदा होती है कि जो खून की नालियों को तंग करते हैं, टाइट करते हैं, वहां पे उसको वो प्लास्टर टाइप कर देते हैं। अब नाली अगर इतनी और खून फरावानी से उसमें बह रहा है तो इसकी वजह से खून जो तंग होना, ये नाली तंग होनी शुरू हो जाएगी। जब ये तंग होगी तो इसको खून को गुजरने में मुश्किल पेश आएगी। और चूंकि खून की नालियां जो है वो बहुत सेंसिटिव हैं, अगर आपकी खून की नाली बंद हो जाएगी तो अल्लाह ना करे उससे आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, आपके दिल की दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। उसमें से दिमाग के जो स्ट्रोक होता है बहुत कॉमन चीज है, इसको आसान ना लेना। हर सूटे के बाद खुश होने वाला हूँ, ये तुम्हारे लिए है। और खासकर जूं जूं तुम्हारी उम्र बढ़ती जाएगी ये नुकसान और तबाही हर घंटे के साथ, हर दिन के साथ बढ़ेगी। और थोड़ा सा मैं टच करूंगा कि जो ख्वातीन सिगरेट पीती हैं उनके बच्चों को बहुत नुकसान होता है। और उनका बच्चा अगर पेट में है तो वहाँ पे पेट में डेथ हो सकती है, एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं। उसमें हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन 100% साबित शुदा है कि उनमें बच्चों में पैदाशी तौर पे बहुत सारी खामियां रह जाती हैं। तो इसलिए आखिरी वार्निंग है, संभल जाओ खुदा के वास्ते। और खासकर स्टूडेंट से मजे में हीरो बन के खड़े हो लड़कियों के कॉलेज के सामने। और सबसे पहला जो काम खराब शुरू होता है वो लड़कों में होता है। क्या हुआ जी, वो दोस्त सारे पी रहे थे तो मैंने कहा मैं भी एक सूटा लगा के देख लूं। और जब हमारे एक दोस्त था तो वो जब ट्रेन पे हम ट्रिप पे जाते थे तो जब औरतों के या लड़कियों के वो डब्बे के आगे से गुजरता था तो एक सूटा लगा के ऐसे करके तो अब वहाँ पे छोड़ता था। तो ये सूटा फिर सारी जिंदगी के लिए उसके साथ ही लग गया। तो इसलिए प्लीज तजर्बाती तौर पे आइंदा से स्मोकिंग का तजर्बा बंद। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और सिगरेट पीने वाले को खासकर हिदायत दे। उम्मीद है कुछ न कुछ असर जरूर होगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मलीहा मुश्ताक फ्रॉम झेलम पॉलीक्लिनिक। आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक कॉमन टॉपिक पे बात करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि टोबैको स्मोकिंग को आप किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों का यही कहना होता है कि हम लोग बहुत अरसे से सिगरेट पी रहे हैं और मतलब इतना अरसा गुजर गया हमें और हम अब उसे छोड़ नहीं सकते, ये हमारे बस की बात नहीं है। और बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन अब हम क्या करें, हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो इन सवालात के जवाब के लिए आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो ये देखें कि जैसे हमारा दिमाग जो है वो किसी भी चीज़ का आसानी से आदी हो जाता है, तो किसी भी आदत को छोड़ने की वो एक ज़बरदस्त ताकत रखता है। ये सब कुछ हमारे अपने इख्तियार में होता है, हमारे अपने हाथ में होता है कि हमने क्या करना है। हमने अच्छी आदतें अपनानी है या बुरी आदतें अपनानी है। अगर आप स्मोक कर रहे हैं और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज मैं आपको चंद टिप्स दूंगी
नंबर 1, सबसे पहले आप पुख्ता इरादा करें। कोई भी काम करने से पहले हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। हम सोचते हैं, हम प्लान करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अगर हम सिगरेट पी रहे हैं तो इसका हमारी हेल्थ पे क्या असर हो रहा है। अपने बारे में सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचें। ये सोचें कि आपकी इस आदत की वजह से कितने सारे लोग हैं जो मुतासिर हो रहे हैं। वो आपको कुछ नहीं कह रहे, लेकिन इट मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी इस आदत से खुश हैं। अपनी इस आदत को छोड़ने के लिए आपको पुख्ता इरादा करना है। आप सोच लें कि मैंने सिगरेट नहीं पीनी। उसके लिए आप कोई एक डेट मखसूस करें, एक दिन ऐसा मखसूस कर लें कि हाँ मैंने फ़लाँ डेट को सिगरेट छोड़ देनी है। लेकिन सिर्फ कहना ही नहीं है, इस पर अमल भी करना है। कम से कम 2 वीक्स का गैप रखें। आपको लगता है कि मतलब मैंने, जैसे आप कह रहे हैं कि मैंने सिगरेट छोड़ देनी है फ़लाँ डेट को। हाँ, अगर वो डेट स्पेशल डे है, कोई मतलब आपकी बर्थडे है या आपके किसी भी करीबी दोस्त की बर्थडे है या कोई नया साल का आगाज़ है, मतलब अगर आप उस डेट को किसी स्पेशल डेट के साथ कंपाइल कर लेंगे तो इसके इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होंगे। फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्मोकिंग को कम करना है। अगर आप दिन में 10 सिगरेट पीते हैं तो आपने 10 से आहिस्ता आहिस्ता 5 पे आना है। और ये दौरानिया चूँकि निकोटीन का ही सारा काम होता है, वो हमारे दिमाग में जो है वो असर करती है, दिमाग पे असर कर रही होती है, तो हमें प्लेजर फील होता है और हम एक और सिगरेट लगा लेते हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपने ये देखें कि किसी भी चीज़ की क्रेविंग का टाइम जो है वो सिर्फ 5 मिनट होता है। अगर उस 5 मिनट में आपने खुद पे कंट्रोल कर लिया तो वो 5 मिनट आप समझ लें कि आपकी अगली पूरी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छे साबित होंगे। तो जब आपको क्रेविंग हो रही है, आपको तलब हो रही है, आपका दिल चाह रहा है कि मैं सिगरेट पीऊँ, तो उस क्रेविंग को ख़त्म करने के लिए 5 D's हैं। नंबर 1, डिले, कि आप 3 से 5 मिनट तक डिले कर दें। अपनी अगर तलब हो रही है तो होने दें, 3 से 5 मिनट तक आप इंतज़ार करें, वो तलब ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। नंबर 2D, डिस्ट्रैक्ट, यानी कि अपने जहन को डिस्ट्रैक्ट करें। अगर आपका दिल चाह रहा है कि मैं सिगरेट पीऊँ, तो उस टाइम आपने क्या करना है, कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाना है। कोई म्यूज़िक सुनने लग जाना है, वॉक करने लग जाना है, किसी से बातें करने लग जाना है। अपनी पसंद का आप कोई भी काम कर सकते हैं। नंबर 3, डीप ब्रीथिंग, आप गहरे लंबे सांस ले सकते हैं उस वक्त। डीप ब्रीथिंग से क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो एक्टिव हो जाएगा, आप एकदम फ्रेश फील करने लग जाएंगे। नंबर 4D, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। जब भी आपको क्रेविंग हो रही है उस दौरान आप नंबर 4 पे आपने क्या काम करना है कि बहुत ज़्यादा पानी पीना है, क्योंकि पानी से भी आपकी क्रेविंग जो है वो रिड्यूस होगी। नंबर 5th एंड लास्ट D इज़ डिस्कशन, कि आप अपने करीबी रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से डिस्कस करें, उन्हें बताएं कि मेरा दिल चाह रहा है लेकिन मैं इरादा कर चुका हूँ और मैं नहीं पीना चाहता, तो आप मेरी हेल्प करें। इससे क्या होगा कि आपको आपके दोस्त अहबाब या आपके करीबी रिश्तेदार जिससे भी आप डिस्कस कर रहे हैं वो आपको कोई अच्छा मशवरा देंगे कि आपने ये नहीं पीना, वो आपको बताएंगे, वो आपको रिमाइंड करवाएंगे कि ये चीज़ आपकी हेल्थ के लिए ख़राब है, ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। इससे क्या होगा कि ये जो आपका दिमाग में जो स्ट्रेंथ है इसको छोड़ने की, वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, आँख ओझल पहाड़ ओझल। तो यानी कि क्या, जो भी चीज़ आपके सामने है आपका दिल चाहेगा कि मैं वो काम करूं, मतलब वो सामने नज़र आ रही है, अब वो जब नज़र आ रही है तो दिल करेगा कि मैं इसे यूज़ करूं। तो आपने क्या करना है कि इसके लिए आपने उसी चीज़ को, यानी कि सिगरेट को अपने आप से दूर रखना है। सिगरेट से रिलेटेड हर चीज़ को, चाहे वो एस्ट्रे है, कोई लाइटर है
या कुछ भी है, उसकी जगह आपने अपनी पॉकेट में जो है वो कोई नट्स रख सकते हैं, आप बबल गम रख सकते हैं। आखिर में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि खुदारा अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर सेहत है तो सब कुछ है, अगर सेहत है तो ही आपको कोई खुशी है तो महसूस होगी, अगर सेहत नहीं है तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे सेहतमंदाना अंदाज से गुजारें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।